Hello student, how's going everything? I hope everything is going smoothly. Your study and all. Student, last time that we all had study about the electrostatics, in which we already have learned the electric field, electrostatic potential energy, and device capacitance, etc., and some problem based on it also. I am very happy to get that thing that some people having very good effort in previous topics they are solving the problem based on competitive exam also, as well as board exam question papers or the NCRT problems, etc. Student, today we are going to study about the very fresh topic, electric current. And I just want to say that this topic is quite easy or very easy for you all, because you already aware about some topic of this particular chapter, electric current internal standard. So it is very easy, and I hope you all will more comfortable in that topic. But the knowledge of previous topic is very important in all the topic what we'll study or what we are going to study. So keep all thing what you all have learned, what we have learned, keep all thing properly, and these are going to be help you to study the further more topic or this topic also. Student, in this chapter basically electric current, we will study the origin of current and the material in which it can be exist, what parameter can affected the flowing current in a circuit, and some other things like power of a circuit, potential difference at a certain component, at a particular component. And further we will study about some instrument which is based on electric current for the measuring of electric current, or any other thing like a voltmeter, ammeter, potentiometer, Wheatstone bridge, it means meter bridge, etc. So let us start this fresh topic, electric current. In order to study this topic, let's first of all, what is electric current actually? इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होता है? As you know that electric current is the rate change of charges in a circuit. किसी सर्किट में जो रेट चेंज होता है चार्जेस का, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. रेट ऑफ चार्ज फ्लो बेसिकली कह सकते हैं. रेट ऑफ चार्ज फ्लो in a circuit is called electric current. जो चार्ज फ्लो की रेट होती है किसी सर्किट में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. अब बेसिकली अगर चार्ज फ्लो की बात करते हैं तो दिस इज द फिनोमिना founded due to the motion of charge rather than static of charges. What we have learned before, due to static of charges, some parameter, electric field, electrostatic potential, etc., we have learned. But here the phenomena or the property due to motion of charge we are going to study, that is electric current. अगर कहीं पर चार्ज का मोशन होता है तो उससे जो प्रॉपर्टी लिंक करेगी, जो प्रॉपर्टी होगी, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट है. सेकेंड वन वी विल स्टडी आफ्टर दिस चैप्टर, that is magnetism. This is also you all aware from the 10th standard. So electric current is the property due to the motion of charge or due to the flow of charges. First thing. What second thing we just want to discuss here, what type of quantity actually current किस type की quantity है. To understand the type of quantity, whether it is vector quantity or scalar quantity, let's take one or two example. Like in a circuit, we are just draw a circuit like that. Some current is flowing in this manner. Suppose 3 ampere, this is 2 ampere,
Before it, why not we just put a equation to express this definition, then we will take this example. So of rate of charge flow, तो चार्ज के फ्लो होने को हम क्या लिखते हैं, रेट चेंज जो हो रहा है उसका, तो हम आई इक्वल टू एवरेज में लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एवरेज वैल्यू है। इसी के लिए हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखेंगे क्या, लिमिट डेल टी इज अप्रोचिंग टू जीरो डेल क्यू बाई डेल टी, or we can say dq by dt. This is electric current, so for I must be equal to dq by dt. For this definition we can write the unit of electric current charge. Unit of charge is coulomb, unit of time is second, so coulomb per second we can say coulomb per second, this is the unit. Now what kind of क्वांटिटी एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट किस तरह की क्वांटिटी है, वेदर इट इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, फॉर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू टेक सम एग्जांपल लाइक दैट. इफ इन ए सर्किट करंट इज फ्लोइंग लाइक दैट, दिस इज 3 एम्पियर करंट सपोज, and this is 2 ampere current. Let's take this angle is 90 degree. How much current is flowing in it? I must be what? One example. Second example, similar example we are going to take. Suppose this is 3 ampere current, this is 2 ampere current, and now what quantity of current is this? In first case, you all aware about that, if 3 ampere current is coming from here and 2 ampere current is coming from here at this point, and now total current must be 5 ampere. The addition is not follow the vector law that a square plus b square का root, it means root 3 square plus 2 square 9 plus 4 14, और root 14 जैसी कोई क्वांटिटी यहाँ पे हमने नहीं लिखी, यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया 3 + 2 5 एम्पियर. तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, बट इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. सी दिस एग्जांपल, 3 ampere current is going from there, 2 ampere current is going from there. Now current in this branch, it means I must be equal to 1 ampere. तो ये दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी बट इट इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट एक्चुअली इट इज टेंसर क्वांटिटी. इफ इन ए ऑप्शन, if in a question an option is given you that current is vector, scalar, tensor, none of these, then it will be tensor quantity. If tensor is not given is there, so you will take that it will be scalar quantity. तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि एडिशन जो हो रहा है it is not follow the vector law, so it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी है, या हम कह सकते हैं इट इज टेंसर क्वांटिटी. ये टेंसर है. जो कि डायरेक्शन पर तो डिपेंड करती है बट ये वेक्टर नहीं. इट इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन बट इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी. नाउ चार्जेस का फ्लो हम समझते हैं कि मटेरियल में हमने डिफाइन किया था लास्ट चैप्टर में. मटेरियल कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर टाइप से डिफाइन किया गया था या इसको क्लासिफाइड किया गया था. अब ये क्वेश्चन है कि करंट किसमें होती है, तो हम कहेंगे कि जिसमें चार्ज फ्लो होती है. द मटेरियल इन विच चार्ज कैन फ्लो और चार्जेस कैन फ्लो, इट मस्ट रिक्वायर करंट.
So no doubt conductor is the main material in which current is flowing. In chemistry, you all have learned in electrochemistry that a material which is called electrolyte, which can produces the ion in solution or molten state, also carry the current. But here we will study only about the solid material, it means conductor. So for current in conductor क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. करंट इन कंडक्टर, कंडक्टर में करंट किस तरह से होगा. अब क्वेश्चन ये है कि जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है या जिसमें फ्री चार्जेस होते हैं वही करंट कैरी कर सकता है. तो कोई सा भी कंडक्टर अगर हम लें तो एक चैप्टर पहले है अभी भी केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, लेकिन सिलेबस में नहीं है. तो सॉलिड स्टेट में मटेरियल का या सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया था. तो उसमें एक सॉलिड होता था मेटालिक सॉलिड. मेटालिक सॉलिड का जो थियरी है वो सी इलेक्ट्रॉन मॉडल है. सी इलेक्ट्रॉन मॉडल इन द सेंस ये है कि कोई सा भी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन एक सी के जैसे हैं और उसमें एक पॉजिटिव चार्ज यानी कर्नल उसी में डिप्ड है, और वी कैन से a material in which a huge amount of free electron is surrounded of positive charges, that is called kernel. This particular model is known as C electron model. उसको अगर हम ध्यान देते हैं, एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन लेते हैं इस तरह से. दिस इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. तो पाएंगे कि इसमें फ्री चार्जेस इट मीन्स इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रॉन होने से एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग करेंगे कि फ्री चार्ज हैं और रूम टेम्परेचर पे ही उनको इतनी एनर्जी मिलती है कि वो मूव करते रहते हैं ड्यू टू द थर्मल मोशन. उसको थर्मल मोशन बोलते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी. उस हीट को पा के वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या होते हैं, मूव करते हैं एक प्लेस से या एक कर्नल से दूसरे कर्नल पे. इस टाइप के मोशन को थर्मल मोशन कहते हैं. और ऐसा करने में बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक गैस के मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करते हैं. अब गैसियस लॉ अगर आपने पढ़े होंगे तो देखे होंगे किसी कंटेनर में गैस कैसे बिहेव करता है. एक रैंडम मोशन करता है और रैंडम मोशन करने के सेंस में वो कोलाइड करता है टू ईच अदर एंड कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर. In the same way, electron does also. But one thing, before any consecutive collision, gas molecule goes in a are followed in a state path that is called mean free path, and the time in any two consecutive collision is called relaxation time. Same property will be hold here also. It means if an electron is moving like that, a random motion it possessing a random motion in this way, it will moving like this way, it will collide to each other, एक दूसरे से collide करेंगे. तो किन्हीं दो कोलिजन के बीच का जो बेसिकली टाइम होता है, कोलिजन होने में जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. और इस टाइप की वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं. मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करता हूँ एक दूसरे फिगर में. और ये जो पाथ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं. अगर हम इसको इस तरह से ना दिखा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में देखें तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है थर्मल एनर्जी की वजह से रूम टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर पे. यहाँ पर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया, वो जरा सा देखोगे. ये एक कंडक्टर है, तो इसमें सपोज एक इलेक्ट्रॉन ये तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस तरह का मोशन पजेस कर रहा हो. एक इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है ऐसा मोशन पजेस कर रहा हो. एक इलेक्ट्रॉन ये है उसमें ऐसा मोशन हो रहा होगा. कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो इस तरह से मोशन कर रहा होगा, कोई होगा जो ऐसे. इट मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन possessing the random motion
it is totally uncertain the direction and speed. इस तरह से it is quite similar as gaseous molecule. 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह के मोशन पोजेस करते हैं। ऐसे केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं। सपोज लेट इन दिस क्रॉस सेक्शन n इलेक्ट्रॉन is present, n मॉलिक्यूल या n इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। इसमें n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और सभी इस तरह का रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो नेट मोशन कितना होगा? नेट वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। नेट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, और वो कितनी होगी? वो इस तरह से होगी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे सबकी un बाई n ये कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि नेट मोशन क्या होता है? 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ही रहता है, उसको क्रॉस नहीं करता है। इट मीन्स ये नेट वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी, वो क्या होगी? 0 होगी, ड्यू टू द रैंडम मोशन। नाउ इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इन इट, आप देखो कि किसी कंडक्टर वायर में लेके उसको हम प्लग इन कर देते हैं, तो उसके वजह से लाइट जलती है, फैन चलता है। इट मीन्स नाउ इलेक्ट्रॉन विच आर एक्चुअली मूविंग इन दिस फैशन, on applying the potential difference it become changes, and we founded that a net motion will be found, due to which some kind of electrical work can be carried out, like running a fan, lighting a tube etc., or functioning a pump. These all work we already have done in our households. So let us discuss what quantity of velocity will be changes if a potential difference applied across the any conductor. किसी कंडक्टर में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो उसका मोशन किस तरह से चेंज होता है? हाउ डज ए सर्टेन या ए नेट मोशन, ए नेट वेलोसिटी विल बी फाउंडेड। वी जस्ट वांट टू डिफाइन दैट वेलोसिटी आल्सो। सो देन इसको हम रफ करेंगे, और अगर उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस या उस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक नेट वेलोसिटी आती है, उसको डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट होती है, इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करती है। इसको रफ करेंगे। हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी it is the velocity of electron under influence of applied electric field or potential difference. Velocity of electron in conductor, electron in influence of applied potential। अगर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जाए थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए और उस पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? अगर फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा, एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, रिवर मैन प्रॉब्लम इन काइनेमेटिक्स, तो हम देखते थे कि एक स्विमर एक रिवर के वन बैंक से सेकंड बैंक पे अगर जाना चाहता तो जंप करता था। उस जंप करने के सेंस में वो उसी एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में नहीं पहुंचता था, बल्कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वो आगे जाता था, या उसमें हम कह सकते थे कि एक उसके पर्टिकुलर मोशन के अलावा रिवर के मोशन के डायरेक्शन में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होता था।
कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। जरा सा देखो, एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन हम बनाते हैं, तो ये एक क्रॉस सेक्शन है। अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन इलेक्ट्रॉन का कुछ इस तरह से होगा। कोई सर्टेन नहीं है कि कौन सा कहाँ जाएगा। इस तरह से ये थर्मल मोशन कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे भी हो। ये सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसे n है, ऐसे मोशन कर रहे होंगे। But as well as a potential difference is applied across its end like that, जैसे ही इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया ऐसा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इसके इन्फ्लुएंस में कुछ मोशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था वहां ना जाके कुछ यहाँ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था वहां ना जाके यहाँ जाएगा, जो यहाँ आ रहा था यहाँ जाके यहाँ आएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा था वो यहाँ आएगा, जो यहाँ पहुंच रहा था शायद यहाँ आएगा, जो यहाँ जा रहा था शायद यहाँ आएगा। ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में थोड़ा मोशन करेंगे। इसी मोशन को जो यहाँ से यहाँ तक होता है या जो यहाँ से यहाँ तक होता है ऐसा, या यहाँ से यहाँ तक इस तरह से होता है, इसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में हमने लिखा कि velocity of electron influence of applied potential through a conductor is called drift velocity। तो यही वो मोशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब कंडक्टर में जरा सा देखो, थोड़ा सा इलेबोरेट करें इसको अगर हम, तो दो टाइप के चार्जेस हैं। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और एक कर्नेल कहते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दी गई तो पॉजिटिव चार्ज पर मोशन होगा इधर, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर। कितना फोर्स लगेगा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस पर फोर्स लगेगा E इंटू ई माइनस, और ये पॉजिटिव है तो इस पर लगेगा E इंटू ई। ये क्या है? Q इंटू ई इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो कि लास्ट चैप्टर में पढ़े हो। अब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम क्या देखते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मोशन में होता है, इट मींस I की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, इसके अपोजिट है। I की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन के बराबर होती है, पॉजिटिव चार्ज के, यानी E पॉजिटिव के कर्नेल के। एक्चुअली कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, बट करंट की डायरेक्शन कन्वीनियंटली ये देखा गया था कि किधर होती है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, तो इसको हमने एक लॉ बना लिया। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले करंट और मैग्नेटिज्म की स्टडी हो चुकी थी, तो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होती है। बट वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज अकर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली, which is moving in opposite to the direction of electric current, like that. Now this type of phenomena will take place if a potential difference is applied to it। अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, ये लेंथ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए L लेंथ है, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई E इक्वल टू V/L अप्लाई किया गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस पर फोर्स कितना लगा, Q इंटू ई। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इन पे मोशन हो रहा है। अब मोशन हो रहा है तो ये फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो उसको मैं काइनेमेटिक के इक्वेशन से करता हूँ कि V1 कितना होगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस A T
टी मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड बिफोर एनी टू कोलिजन, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ चाहे लिख देता हूँ कि ये जो कोलिजन हो रहा है उसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। टाइम टेकन in any two consecutive collision of electron is called relaxation time. Time of any two consecutive collision of electron is called relaxation time. टाउ से रिप्रेजेंट। क्वेश्चन तो ये है कि क्या टकराने के बाद हम नहीं पाएंगे, एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, तो वो दूसरा इक्वेशन होगा, उस पर हम बिफोर कोलिजन वी विल डिस्कस। तो वो टाइम पीरियड जब से यहाँ जाके इससे टकरा सकता है या ये वाला इससे टकराएगा, तब एक दूसरा फ्रेम हो जाएगा। टकराने तक का हम स्टडी करते हैं डे वेलोसिटी को। तो a इंटू टाउ वन क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, a इंटू टाउ वन। इसी तरह से v2 क्या हो जाएगा, u2 प्लस a इंटू टाउ टू। इसी तरह से vn कितना हो जाएगा, nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी un प्लस a इंटू टाउ n होगा। अब ना हमको बेसिकली ए चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो यहां से निकालते हैं, एफ इक्वल टू लिखते हैं हम लोग एम ए इक्वल टू क्या लिखते, एफ बाई एम। अब ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है, ई इंटू ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें तो जो एक्सेलरेशन होगा इस दौरान वो हो जाएगा माइनस ई इंटू ई बाई एम, ई इंटू ई बाई एम। ये जो टाउ आता है ना, सबका एवरेज लिया जाता है, यानी T1 T2 T3, मैं इसको T1 T2 T3 कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होगा, T1 T2 T3 एवरेज टाइम होता है, क्योंकि किसी का पहले होगा किसी का बाद होगा, तो एवरेज टाइम लिया जाएगा, ये होगा। अभी इसको हम इसका एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं, क्योंकि किसी कम ज़्यादा गैस में भी हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, तो यहाँ भी क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो वी एवरेज करते हैं, वी एवरेज, इसी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 vn हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जब रखोगे तो देखोगे क्या होगा, u1 प्लस a की वैल्यू मैं रखता हूँ, या a को अभी कॉमन करके रख देंगे, a t1 प्लस u2 प्लस a t2 un प्लस a tn बाई n। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, तो देखेंगे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर लेते हैं, u1 प्लस u2 un अपॉन n प्लस a कॉमन है, t1 प्लस t2 प्लस tn बाई u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un अपॉन n। एवरेज वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, तो उसको हम जीरो लिख देते हैं, जीरो प्लस इसको टाउ लिख देते हैं वहां से, a इंटू टाउ। a की वैल्यू कितना है, माइनस ई ई बाई एम, वो वाला मैं रख कर दूं क्या, वहां पे इसको रख लिया जाए, इसको रख कर देता हूँ, पॉज करके लिखने में,
यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, a इंटू टाउ। ए की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट किया है -e बाई m इंटू टाउ। दिस इज विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। e को ना v के टर्म पे, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, तो v के टर्म पे भी लिख सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये उस पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस अपोजिट इन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और फॉर्म इसको हम लिख सकते हैं कि वी डी, ई की जगह पर क्या लिख दें, वी बाई एल लिख दें, तो माइनस ई वी बाई एम इंटू एल इंटू टाउ। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉन, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, इट मींस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, टाउ लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड एम मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। और यही रीजन है कि प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की करंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ तक बच्चों सब लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट टर्म पर हम इस पे कुछ पैरामीटर, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन डिफाइन करेंगे और इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और फिर उसके बाद आगे की टॉपिक देखा जाएगा। थैंक यू।